Hello everyone. I hope you are doing well and taking proper care of yourselves. So today we'll start our next and important topic, which is right. The main objective of this video lecture is to understand the following concept. What is the meaning of right? What are legal rights and moral rights? How many fundamental rights? Human rights and nature of human rights and concept of rights. आइए जानते हैं कि राइट है क्या। आइए अगर हम एक थ्योरी की बात करें तो ये थ्योरी कहती है कि राइट्स कम्स फ्रॉम नेचर एंड आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी ह्यूमन एजेंसी। एंड इसी थ्योरी की जो सेकंड पॉइंट है वो कहती है कि राइट्स आर बिल्ट ऑन द लॉज ऑफ नेचर विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये जो थ्योरी है वो कहती है कि जो राइट्स हैं वो हमें नेचुरली मिले हैं और ये किसी ह्यूमन एजेंसी के द्वारा क्रिएट नहीं किए जाते। जो राइट्स हैं वो बिल्ट होते हैं लॉज ऑफ नेचर पर, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट किए गए हैं। आइए अब इसकी मीनिंग की बात करते हैं कि राइट्स का मीनिंग क्या हो सकता है। ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। दीज आर मॉरल क्लेम्स which are inalienable and inherent in all individuals by virtue of their humanity alone, irrespective of caste, color, creed and place of birth, sex, cultural difference or any other consideration. These claims are articulated and formulated in what is today known as human rights. Human rights are sometimes referred to as fundamental rights, basic rights, inherent rights, natural rights and birth rights. आइए अब समझते हैं राइट्स की और क्या क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं। आइए चर्चा करते हैं कि राइट क्या है। तो राइट जो है वो क्लेम है, अगर हिंदी में कहें तो ये एक हक है। इंटाइटलमेंट्स हैं यानी कि अधिकार है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं यानी कि अवसर है, कुछ करने की छूट है। और किसी के लिए ये नीड्स है, अपनी नीड्स को जो फुलफिल कर सके वो राइट्स है। तो जो राइट्स है उसके बहुत सारे मायने हैं। आइए इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें एक ही सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं, तो इट इज़ अ क्लेम अलाउड बाय मैचिंग ऑब्लिगेशन बाय अदर्स। कि ये क्लेम है जो कि अलाउ किया जाता है दूसरों के द्वारा एक ऑब्लिगेशन की तरह। और जो ये ऑब्लिगेशन है इट मे बी मॉरल, कस्टमरी, बेस्ड ऑन नेचुरल लॉ और लीगली इन्फोर्स्ड। राइट जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है जस्टिस से, लिबर्टी से, इक्वालिटी से। राइट जो कंसेप्ट है ये टाइम के और स्पेस के साथ चेंज होने वाला एकमात्र कंसेप्ट है। जैसे कि पहले स्लेवरी एक राइट था जो कि टाइम और स्पेस के साथ चेंज हुआ है। आइए अब बात करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स कि ह्यूमन राइट्स का नेचर क्या है। Human rights are those rights to which an individual is entitled by virtue of his status as a human being, while civil, political and social economic rights are dependent on an individual's status as a citizen of a particular state. His human rights are not determined by this condition. Thus, the scope of human right is very wide. They set the standards for the provision and expansion of civil, political and social economic rights. Again,
where an individual's civil, political, and social economic rights are exhausted, he can still hope to get some relief under the umbrella of human rights. यानी कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो एक ऐसे राइट हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के स्टेटस पर दिए जाते हैं. Human rights constitute the very sources of all rights of human beings. They embody the scheme of ideal right. They provide for moral foundation of any system of right. In a way, they are akin to the concept of justice, as the idea of justice determines the principles on which law should be based. So, the idea of human rights sets the standard on which all other rights should be based. In other words, human rights, like any other rights, have to be enforced by a state or an international tribunal which should be capable of enforcing them. Anybody who claims any human rights must prove himself to be law-abiding and must submit himself to law for appropriate justice. In order to understand the true character of human rights, it would be worthwhile to inquire into the nature of rights as such. जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका जो स्कोप है बहुत ही वाइड है. आइए अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ राइट्स. राइट्स essentially belong to the sphere of conflicting claims between individual and the state. Any political theory which holds that an individual cannot have rights against the state is no theory of rights. It is important to note that the benefits which flow automatically from the existence of the state do not constitute rights. Rights come into the picture only when authority of the state is sought to be limited, or when individuals and their groups demand a positive role of the state to secure better conditions of life. In a nutshell, rights consist in claims of individuals which seek to restrict arbitrary power of the state and which are required to be secured through legal and constitutional mechanisms. In addition, these may include some benefits which the state may extend to its citizens to improve the quality of their life. अगर हम टाइप्स ऑफ राइट की बात करें तो नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट बहुत ही मेनली काइंड्स ऑफ राइट हैं, लेकिन हम इसी के साथ एब्सोल्यूट राइट और लिमिटेड राइट की भी बात करते हैं. सो जो नेगेटिव राइट है वो है अ राइट दैट अनदर कैन गारंटी बाय लीविंग यू अलोन. और वहीं अगर पॉजिटिव राइट की बात करें तो अ राइट ऑब्लिगेटिंग अदर्स टू डू समथिंग ऑन योर बिहाफ. और अगर हम एब्सोल्यूट राइट की बात करें तो अ राइट गारंटीड विदाउट एक्सेप्शन. एट लास्ट अगर हम लिमिटेड राइट की बात करें तो अ राइट दैट मे बी restricted based on the circumstances. The concept of rights is a dynamic concept. With the development of social consciousness, rights are subjected to review and redefinition. It is interesting to note that rights are always demanded and even guaranteed as the rights of man. Negative right suggest the sphere where the state is not permitted to enter. They suggest the sphere of freedom of individual which shall not be encroached by the state. Positive rights, on the other hand, prescribe the responsibility of the state in securing rights of individuals. They require the state to take positive measures for the protection of the weaker and vulnerable sections or those placed in a vulnerable position. In fact, the negative and positive rights should be treated as a parts of a continuum, not as distinct entities.
Broadly speaking, negative rights indicate as to which act of the individual shall not be restricted by the state. Thus, freedom of thought and expression implies that the state shall not impose any restriction on individuals' thought and expression. आइए अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, जो कि हैं लीगल राइट्स एंड मोरल राइट्स। लीगल राइट्स क्या हैं? दीज आर राइट्स लेड डाउन इन लॉ एंड बिकॉज दे कैन बी डिफेंडेड इन अ नेशनल कोर्ट ऑफ लॉ दे आर द मोस्ट सॉलिड ऑफ ऑल राइट्स। वहीं अगर हम मोरल राइट्स की बात करें तो दीज अराइज आउट ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। अ मोरल राइट मे और मे नॉट बी इन्फोर्स्ड एंड सपोर्टेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम लीगल राइट्स के बारे में और पढ़ें तो इसमें आता है कि राइट्स डेट आर गारंटीड टू सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री बाय लॉ टू एंजॉय सर्टेन फ्रीडम्स विदाउट एनी फियर और फेवर। और इसी के साथ अ लीगल राइट इज़ बेस्ड ऑन अ सोसाइटीज़ कस्टम्स, लॉज, स्टेटस और एक्शंस बाय लेजिस्लेचर्स। These are called civil rights and are culturally and politically relative. Right to vote. Right to vote जो है वो एक लीगल राइट है। अगर हम राइट्स की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट्स के बारे में क्या लिखा गया है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीएम्बल की, जिसके अंदर लिखा हुआ है सिक्योर, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक है। अगर जस्टिस की बात करें तो एश्योरिंग डिग्निटी टू ईच इंडिविजुअल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर हम इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट फ्रेटर्निटी की, हम इन सभी की बात करते हैं प्रीएम्बल में। पार्ट थर्ड जो है उसमें है फंडामेंटल राइट्स, जिसके अंदर है निगेटिव राइट्स भी। पार्ट 4 की बात करें उसके अंदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंदर हम पॉजिटिव राइट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 41 कहता है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। वहीं अगर हम आर्टिकल 42 की बात करें तो 42 कहता है कि प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। वहीं अगर हम आर्टिकल 43 की बात करें तो लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। अगर हम आर्टिकल 45 की बात करें तो प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इन सभी की बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बेसिस पर। एट लास्ट आइए जानते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स पर कुछ थोड़ी बहुत ही चर्चा करेंगे। इसकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाकर बहुत जल्द चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसे आप जान पाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कहाँ से आए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम थोड़ा कंसेप्ट जान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। The fundamental rights are enshrined in part 3rd of the Constitution from Articles 12 to 35. In this regard, the framers of the Constitution derived inspiration from the Constitution of USA, that is, Bill of Rights. The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual and the larger public interest and unity of the nation. Originally, the Constitution provided for 7 fundamental rights, that is, right to equality, ये आर्टिकल 14 to 18 तक है। राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से 22 तक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 23 से 24 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 से 30 तक हैं।
और वहीं राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 जो कि अब नहीं है, जिसे अब लीगल राइट बना दिया गया है। एट लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज आर्टिकल 32 है। However, the right to property was deleted from the list of fundamental rights by the 44th Amendment Act 1978. It is made a legal right under Article 300A in Part 12 of the Constitution. So, at present, there are only 6 fundamental rights in our Constitution. तो फंडामेंटल राइट्स पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर हम बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, जिससे आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में और अच्छी तरीके से जान पाएंगे। एट लास्ट इस वीडियो का क्या पूरा क्रश है इसके बारे में जान लेते हैं। सो राइट्स आर क्लेम्स अलाउड बाय अदर्स एज ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू द वैल्यूज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। और इसी के साथ आपको बता दें कि जो राइट्स हैं वो अब तक 3 जनरेशन्स में आ चुके हैं, जिसमें जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें था सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और वहीं जो सेकंड जनरेशन थी वो थी सोशो इकोनॉमिक राइट्स, एंड लास्ट जो थर्ड जनरेशन जो है जो चल भी रही है वो है कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। ईच ऑफ these can be traced back to the idea of liberty, equality and fraternity respectively.